Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, students, now we start our new topic of lesson second. So, firstly, lesson second is accounting for partnership firm fundamental. And students, our today's topic is calculation of interest on partners drawing. Students, I have already explained you methods and treatment of interest on partners drawing. But now we solve numerical of this topic. So, student, firstly, we start question number 35. So question 35 is Ram and Mohan, two partners, drew for their personal use rupees 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partner? Student, in this question, the information is given. There are two partners, Ram and Mohan, and the drawings of Ram is rupees 1,20,000 and drawings of Mohan is rupees 80,000. बट इन दिस क्वेश्चन देर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ड्राइंग. ये हम लोगों ने किस मंथ में करी है, किस में जो हमारा पीरियड था उसके बारे में आपको देर इज नो एनी इन्फॉर्मेशन. ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ. ओके, यू नो वेरी वेल. व्हेन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, मंथ वाइज, ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज. ओके, सो इन क्वेश्चन, हालांकि इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे रखी है कि व्हेन द डेट्स ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. ओके, सो नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. So student, this is the solution of this topic. So question number 35. So firstly, interest on drawings of Ram. देखिए, the total amount of drawing of Ram is rupees 1,20,000. Okay, and when date is not given, so interest on drawing will be calculated on the basis of 6 months. Okay, so 1,20,000 into 6 upon 12, because 6% rate of interest is given in your question. Okay, so 1,20,000 into 6% into 6 upon 12, because in case of absence of any instruction we can calculate interest on drawing on the basis of 6 months. Okay, so 1,20,000 into 6 upon 100 into 6 upon 12 is equal to 3,600. And same Mohan, interest on drawings of Mohan is rupees 80,000. Okay, rupees 80,000. So interest on drawing of Mohan is 80,000 into 6 upon 100 into 6 upon 12. Okay, is equal to 2,400. Okay student, so this is a simple question of interest on drawing Ram and Mohan. And student, remaining questions are same. जो मैंने आप लोगों को मैंने बताया था अपनी वीडियोस के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, मंथ वाइज, एवरेज वाइज. जैसे हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021 in each of the following cases. If he withdraw 7,500 in the beginning of each quarter, end of each quarter and mid of each quarter. Okay, so you know very well, मैंने आपको बताया था, मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ. मैं जब आपको बताया था, दिस इज द लास्ट पेज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन quarter wise. Okay, so beginning of the each quarter 7.5 months, mid of the quarter 6 months and end of the quarter 4.5 months. Okay, so how can we solve this question? In this question, if he withdraws 7,500 beginning of each quarter means student वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है. And you know very well, in a year there are 4 quarters. Okay, so first of all 7,500 into 4 इंटू 4 क्यों करेंगे? 4 इसलिए करेंगे क्योंकि हमको मल्टीप्लाई बाय 4 करने से हमको पूरे ईयर की, होल ईयर की हम लोगों को अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये 7,500 ये हमारा केवल 1 ईयर का है, सॉरी ये हमारा ये ओनली फॉर 1 क्वार्टर है. और हम अगर पूरे ईयर की जब हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो हमको इन सबको 4 से मल्टीप्लाई करने पड़े. ओके, तो 7,500 इंटू 4. ओके, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% आपको. ओके, इज गिवन. तो हम क्या करेंगे, 7,500 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 100 एंड लास्ट में ये हमको दे रखा है बिगिनिंग में 7.5 मंथ, तो 7.5 अपॉन 12. ओके, इस तरीके से कैलकुलेट करके वी कैन इजीली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग.
Okay student, so this is the normal question. You can solve all the question, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. And student, now we solve next question 42. 42 question is a different question and very important and interesting question. Student, in this question, the capital accounts of Tisha and Divya showed credit balance of rupees 10 lakh and 7 lakh 50,000 respectively after taking into account drawing and net profit of rupees 5 lakh. The drawings of the partners during the year ended 2020-21 were: Tisha withdrew 25,000 at the end of each quarter, and Divya's drawing 31st May 20,000, 1st of November 17,500, and 1st of February 12,500. Calculate interest on capital at the rate 10% per annum and interest on partners drawing at the rate 6% per annum for the year ended 31st March 2021. The student, in this question, we calculate two types of information. First is interest on capital and second is interest on drawings. Okay, so firstly we discuss about the interest on capital. स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे को अगर क्वेश्चन को स्टडी करिए तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या शो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है. ओके, 10 लाख एंड 7 लाख 50,000. बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, इट मीन्स ये जो आपको कैपिटल का बैलेंस दे रखा है ये बैलेंस आपका आफ्टर टेकिंग ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट के बाद में है. आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने 11वीं क्लास में क्वेश्चन करे थे तो 11वीं क्लास के अंदर जब हम किसी की कैपिटल कैलकुलेट करते थे तो हमारे कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था? ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट करते थे. बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल. बिकॉज ये क्लोजिंग कैपिटल हमें कैसे पता चली? ये क्लोजिंग कैपिटल ऐसे पता चला है हमारे को क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन में ड्राइंग्स को एडजस्ट किया गया है, क्योंकि ये अमाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग, ये आफ्टर ड्राइंग्स है एंड नेट प्रॉफिट है. इट मीन्स इस कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स को और प्रॉफिट को उन्होंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया गया है. तो अगर हमारे को क्वेश्चन में ड्राइंग्स और प्रॉफिट अगर एडजस्ट कर दिया गया है तो देन दिस कैपिटल जो है ये हमारे दिस इज पार्ट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नो वेरी वेल दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमारा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होता है, क्लोजिंग कैपिटल पे चार्ज नहीं होता है. अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन के अंदर पहले सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ओके स्टूडेंट, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का हमारा जो सॉल्यूशन है वही हमारे पास. तो क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. स्टूडेंट, फॉर्मूला ऑफ ओपनिंग कैपिटल इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट. ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल. सो फॉर्मूला ऑफ ओपनिंग कैपिटल इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट. ओके, एंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ तिशा. अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पर जो कैपिटल है वो तिशा की कैपिटल है रुपीज़ 10 लाख. ओके, तो पहले हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं तिशा के लिए. तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ तिशा इज रुपीज़ 10 लाख प्लस ड्राइंग्स. ड्राइंग कितनी यहाँ पर हमारी? देखिए ड्राइंग्स हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है तिशा ड्राइंग 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. वो 25,000 हर क्वार्टर के एंड में कर रही है. इट मीन्स अगर 25,000 पर क्वार्टर है तो होल ईयर की ड्राइंग कितनी हमारे पास में? 25 इंटू 4. ओके, सो 10 लाख प्लस 25 इंटू 4 एंड माइनस प्रॉफिट. अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन देयर इज इंफॉर्मेशन, मिसिंग इंफॉर्मेशन एंड हिडन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, सो इट इज calculated that when if absence of any information, so profit sharing ratio will be equal. Okay, I have already explained you in my previous videos. If absence of any information, so profit sharing ratio will be equal of every partner. ओके, अब यहाँ पर अगर 2 पार्टनर्स हैं और यहाँ पर इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है कि किसका कितना है, तो ऐसे केस के अंदर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हमारा कौन सा होगा? हमारा इक्वल माना जाए. इक्वल मीन्स हाफ हाफ. ओके, अब यहाँ पर हमारे को 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दे रखा है. जो 5 लाख का प्रॉफिट मीन्स 2,50,000 फॉर तिशा एंड 2,50,000 फॉर दिव्या, क्योंकि 5 लाख को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो 2,50,000 ईच पार्टनर निकल के आ गया. ओके, सो यहाँ पर हमने देखा तो ड्राइंग ऑफ तिशा, सॉरी ओपनिंग कैपिटल ऑफ तिशा 10 लाख प्लस 2,50,000 इंटू 4. ओके, एंड माइनस प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 2,50,000. सो 10 लाख प्लस इनकी मल्टीप्लाई करें हम लोगों ने, ये हमारा निकल गया हमारा ये 1 लाख.
ओके, एंड माइनस 2,50,000, तो हमारा रिजल्ट निकल के आ गया 8,50,000। इट मीन्स 8,50,000 ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, दिस इज ओपनिंग कैपिटल ऑफ तिशा। एंड बात करते हैं हम लोग दिव्या की। दिव्या की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आपको क्वेश्चन में देखिए 7,50,000। ओके, सो 7,50,000 इंटू, अब इसकी ड्राइंग कितनी है, देखिए यहाँ जो ड्राइंग की गई है दिव्या ने, वो ड्राइंग इसने करी है एक तरीके से अनइक्वल फॉर्म में। पहले इन्होंने ड्राइंग करी है 31 मई में 20,000, फिर इन्होंने करी है 1 नवंबर में 17,500, अब इन्होंने ड्राइंग कर लिया 1 फरवरी में 12,500 की। तो देखा जाए तो ड्राइंग यहाँ पर इनकी अनइक्वल फॉर्म में हो रही है। ओके, सो ड्राइंग के लिए हम इन तीनों ड्राइंग को ऐड कर देंगे। ओके, तो 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500। ओके, सो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा सेम रहेगा, हमारा 2,50,000। सो 7,50,000 प्लस इन तीनों को हम लोगों ने प्लस किया, ऑल थ्री आइटम, तो 50,000, 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500 इजकल टू 50,000 एंड माइनस 2,50,000, 5,50,000। ओके, क्लियर। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा रिजल्ट आया 5,50,000। इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल ऑफ दिव्या 5,50,000 एंड ओपनिंग कैपिटल ऑफ तिशा इज 8,50,000. And students, now we calculate interest on capital. So interest on capital 8,50,000 and rate of interest on capital is 10% per annum is given in your question. Okay, so interest on capital of Tisha 8,50,000, okay, into 10%, ये हमारा निकल के आ गया इसका 85,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ दिव्या 5,50,000, इसका हम लोगों ने निकाला ये 10%, ये हमारा 55,000। ओके स्टूडेंट, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ तिशा एंड दिव्या 85,000 एंड 55,000 रिस्पेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये पॉइंट देखा है कि हमारा ये इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैसे हमारा ये कैलकुलेट किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। ओके बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सबसे पहले तो हमारा बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर निकालेंगे फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले तिशा एंड दिव्या, देखिए तिशा ने ड्राइंग करी हमारी, तिशा विड्रॉ 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी मैंने आपको बताया था अगर एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है तो हमारा कितना लगता है 4.5 मंथ्स का लगता है। ओके, सो सबसे पहले तिशा की ड्राइंग 25,000 पर क्वार्टर है, 1 ईयर में हमारे क्वार्टर होते हैं 4। ओके, तो 25,000 टू 4 तो हमारे पूरे 1 ईयर की हमारी ड्राइंग निकल के आ जाएगी। उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 6% की दे रखा है, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम इंटू 4.5 अपॉन 12, बिकॉज अगर हमारी वो ड्राइंग जो है अगर हमारे पास में एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो हमारा लगता है 4.5 मंथ्स का। सो 25,000 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन 12। ओके, सो आंसर इज 2,250। ओके स्टूडेंट, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ तिशा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ दिव्या। दिव्या की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसी होगी बच्चों? क्वेश्चन में दिव्या की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो अनइक्वल फॉर्म में है। पहले वो 31 मई में निकाल रही है 20, फिर 1 नवंबर में 17,500 एंड फिर 1 फेब में उसने निकाला है। तो बच्चों ऐसे केस में व्हेन ड्राइंग इज अनइक्वल फॉर्म एंड अनइक्वल अमाउंट, सो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोडक्ट मेथड बेसिस। ओके, प्रोडक्ट मेथड बेसिस मैंने अभी आपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग निकालेंगे अपना प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ दिव्या, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, दिस इज द फॉर्मेट, डेट, अमाउंट, नेम ऑफ मंथ एंड प्रोडक्ट। अब देखिए उसने फर्स्ट ड्राइंग करी है 31 मई में, फिर 1 नवंबर में, फिर 1 फेब में। अमाउंट हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया 20,000, 17,500 एंड 12,500। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे 1। बच्चों ध्यान रखना, अगर इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड में हम देखेंगे 31 मई से 31 मार्च, बिकॉज हमारा जो सेशन है हमारा 31 मार्च चलता है। ओके, तो 31 मई में अगर 20,000 विड्रॉ करी है तो 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? ओके, तो 31 मई 2020 से 31 मार्च 2020 मंथ तक ये हमारे मंथ्स आगे 10। ओके, फिर हमने देखा इसके अंदर 1 नवंबर से 31 मार्च हमारे कितने हुए? तो 1 नवंबर 2022 31 मार्च 2021 तक हमारे एंडिंग ईयर तक 5 मंथ्स हो गए। ओके, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। एंड 1 फरवरी 21 से 31 मार्च 2021 तक, तो फरवरी एंड मार्च ओनली फॉर 2 मंथ्स। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने नंबर ऑफ मंथ्स हम लोगों ने यहाँ पर ये कैलकुलेट किए। एंड नाउ प्रोडक्ट का बच्चों मतलब क्या करते हैं, इस अमाउंट के इस नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20,000 इंटू 10 2 लाख, 17,500 इंटू 5 87,500 एंड 12,500 इंटू 2 25,000। ओके, एंड नाउ अब हमने इस प्रोडक्ट का कर लिया टोटल
3,12,500 and interest on drawing will be calculated on the total product for 1 month. इसमें ध्यान रखना, अगर आप प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर 1 मंथ ऑन टोटल ऑफ प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट में हम 1 मंथ का निकालेंगे तो हमारा कैसे आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,12,500 into 6% because 6% rate of interest is given, okay, in your question, and into 1/12. ओके तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आ गया 1562.5 और 1563. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. सो इस तरीके से ध्यान रखना, हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे और नॉर्मल मेथड को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, क्लियर. सो एंड नाउ यू सॉल्व remaining question of this topic, and if you have any doubt and query so you can call me or WhatsApp me. Okay students, clear. So आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है. ओके स्टूडेंट, एंड यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी. सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.